یہ تم کیا کہہ رہی ہو پریسا؟ یہ ممکن نہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بڑی ماں نہیں پریسا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا یار۔ تو خود سوچو، وہ ہماری ماں ہے اور ماں کب اپنی ہی اولاد کو بیچ سکتی ہے؟ سلطان شوق میں تھا اور مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا سلطان، مگر یہ سچ ہے، انایا آپی کو وہاں بھیجنے والی ہماری ماں تھی۔ ایک آنسو ٹپ کر کے اس کی گود میں گرا تھا۔ نہیں، میں خود پوچھوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں، وہ مجھے سچ بتائے گی۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑا کے کھڑا ہوا تو سامنے جبریل اور انایا کھڑے تھے۔ جبریل نے انایا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، انایا کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ آنسو سے بھری متورم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وحشتی وحشتی خاموشیاں چیخ کے آپس میں ٹکرا رہی تھی، آنکھوں سے صرف یہ التجا تھی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سلطان نے قدم آگے بڑھائے، اپنا دایاں ہاتھ انایا کے رخسار پر رکھا، پھر بھیگے سے لہجے میں پکارا تھا، آپی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ دل میں ایک دم سے درد ابھرا تھا، جبریل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ سلطان، تم نے سنا، ماں نے مجھے وہاں بھیجا تھا، انہیں مجھ پہ رحم نہیں آیا، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہچکیوں سمیت بول رہی تھی۔ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جبریل کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر پریسا نے اس کا ہاتھ تھام کے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو وقت کی ضرورت تھی۔ وہ کئی لمحے اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتا رہا۔ منظر اب کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں بالکنی کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی، سلطان ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ انایا سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، شاید کہنے کو اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا دل مرتا ہو رہا ہے سلطان۔ اب وہ بولی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی یہ بات اپنے آخری وقت میں کہہ رہا ہو۔ ایسا مت کہیں آپی، جانتے ہو، وہ گہری تاریکی میں بالکل آہستہ سے بول رہی تھی، ماں نے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی وہ آئے گی۔ سلطان، جب ماں کو آنا ہی نہیں تھا تو وعدہ کیوں کیا؟ وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی، جانتی ہو آپی، ماں نے کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری مجھے دے کے جا رہی ہیں، مگر میں تو فیل ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکا آپ کے لیے، کہیں نہ کہیں تو میں بھی گنہگار گار ہوں۔ ساری بات نیت کی ہے سلطان، میری بڑی ماں ایسی نہیں تھی کہ پیسوں کے لیے مجھے بیچ دے۔ جانتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا ہے آپی، مجھے بھی اب کہیں نہ کہیں جھول دکھ رہا ہے، مگر دھندلا سا۔ ایگزیکٹلی سلطان، آپ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ انایا کا سر اب بھی اس کے کندھے پہ تھا، وہ اب بھی دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہی سلطان جو تم سوچ رہے ہو، میں مانتی ہوں بڑی ماں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ پاسٹ کو چھوڑ دینا، ورنہ یہ پریزنٹ میں جینے نہیں دیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپی، ہمیں اب تک مات کیوں ہو رہی تھی؟ انایا نے پوچھا تھا۔ کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا اور ہم غلطی کہاں کریں گے۔ سلطان کچھ سوچ کے بول رہا تھا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جانتے ہو؟ انایا نے پوچھا تھا۔ انہیں ایک جیت کی خوشی دینی ہے تاکہ وہ جیت میں اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، اور آپی ہمیں صرف ایک سراغ کی ضرورت ہے۔ اب تک تو وہ جان کے ہوں گے سلطان کہ تم امیشا کو ڈھونڈنے کی پلاننگ کر چکے ہو، اس لیے ہمیں ان کا دھیان یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ انایا چپ ہوئی تاکہ امیشا کو کچھ نہ ہو۔ پولیس بظاہر ان کے ساتھ ہے، مگر انڈر کور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، وجہ رانیہ اور طہیر ہے۔ آپ جان لیں آپی، اب مات نہیں کھا سکتا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں لوٹ کے ضرور آؤں گا اور اپنے ساتھ اسے بھی لاؤں گا جس کا انتظار برسوں میں بیت گیا۔ تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو کیا؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ کمان سلطان، صاف نظر آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری ایک عدد بیوی اور بچہ موجود ہے۔ میں جانتا ہوں آپی، امیشا کا رشتہ تو کہیں پرے کا ہے، جس میں پیار، عزت بھری وفاداری اور بھروسہ ہے، جو وقت آنے پہ ایک دوسرے کے لیے جان دے۔ میں یہ نہ بھولوں گا، نہ بھول سکتا ہوں کہ پریسا میری بیوی ہے، میری زندگی ہے، عشق سے تو کہیں آگے ہے وہ میرے لیے۔ میں چاہوں بھی تو دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ سلطان، کل جب جاؤ تو ملے بغیر جانا، اور جب آؤ تو فتح کی خبر سب سے پہلے مجھے سنانا۔ جی آپی۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں باتیں کر رہے تھے کہ جانے بغیر کہ کوئی سسکیوں سے انہیں سن رہا تھا۔ جانا تو پڑے گا مجھے سلطان، آپ کو وہ سب ملے گا جس کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، میں وہ کیسے چھین سکتی ہوں؟ جانا تو ہوگا مجھے۔ پریسا سلطان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ تو ابھی سب سے مخفی تھے، بس اب خدا خیر کرے۔ کاسائے عشق لے کے یار کی کھوج میں نکلے، دو نین دیوانے یہ کس موج میں ہے نکلے۔ یہ کال کوٹری تھی، ہر طرف فوق کا عالم تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں شاید پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، انسان تو پھر دور کی بات ہے۔ وہ اندھے منہ پڑا تھا، حالت ناساز تھی، یا یوں کہو کہ وہ لڑ رہا تھا جب تک ہمت تھی، جہاں اس کی ہمت ختم ہوئی
समझो जोसेफ का एंड, और ये खुदा कभी होने नहीं देगा। ये सफ़र जब तक चलेगा जब तक उसका एंड नहीं हो जाता। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो वो कैसे भूल गई कि अब कभी वो दुख के करीब नहीं जा सकती, और यूसुफ ने ये कैसे सोच लिया कि वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। जितनी असियत, जितनी तकलीफ, फल उतना ही गहरा। उसके मुंह से पानी निकल रहा था, उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। माथे की बाएं साइड पे गहरा जख्म था जिस पे से गाढ़ा सा खून निकल रहा था, जो बज़ाहिर अब लकीर की सूरत बन गया था। बालों में जो पोनी थी वो कहीं गिर चुकी थी। जिन उंगलियों में अंगूठियां थी वह उनकी जगह जख्म थे। उसे बेदर्दी से गहरा दर्द दिया गया था। उसके पाँव में जंजीरें बंध गई थी। दोनों हाथों को पीछे बांध रखा था और वह खुद औंधे मुंह लेटा था। कोई खिलाए तो खाए, कोई पिलाए तो पिए। जाहिर है उसे आजमाया जा रहा था। वह मुकम्मल होश में नहीं था, मगर हवास कायम थे। वह सुन भी सकता था और बोल भी सकता था। उसके नाक पे एक गहरा कट था और दाहिनी आंख सूजन का शिकार थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज कम होने की वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। ये एक बड़ा सा कमरा था। ऊपर बस एक जालीदार रोशनदान था, जहां से इतनी रोशनी आ रही थी कि वो एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। वो फिर से बड़बड़ाया, मेहरू। उससे दांत भींच के उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और बेदर्दी से उसका चेहरा ऊपर किया। जोसेफ ने पूरी आंखें खोल के उसे देखा। दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। वह तंज से बोली थी, हीरा। जोसेफ के लब फड़फड़ाया। अरे वाह, पहचान लिया। जोसेफ बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे यहाँ ही खत्म कर दे। अरे अपनी हालत तो देख। वह उसके सामने कुर्सी पर झुक के बैठी थी। कब तक करोगी? एक ना एक दिन तो ये वक्त गुजर ही जाएगा। यूसुफ अब के बोला तो मुंह से खून टपक के नीचे गिरा। उसे अपने मुंह में खून का घुलता हुआ जायका महसूस हो रहा था। काश मैं मेहरू के कहने पे तुझे एक मौका ना देता। हीरा के जबड़े भींच के उसने उसे एक झटके से छोड़ा। फिर बोली, तुझे मैंने जब भी दावत दी थी, अब भी देती हूँ। छोड़ दे मेहरू को। तुम जानती हो तुम में और उसमें यही फर्क है। तुम वो कोयला हो जिससे आग में ही जलना है। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर चुका। मेहरू को आजाद करवा दिया। अब बस उस पे आवाज लाठी की देर है। हीरा कई लम्हे उसे उसकी यकीन पे देखती रही और अगले ही लम्हे चीखी, बकवास बंद कर अपनी। अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। तूने मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद कर दी। इतना मारो इसे कि उसके अंदर से मेहरू निकल जाए। वह एक एक लफ्ज से छुपा के बोलती हुई निकली थी। उसलिए तुम तवाइफ थी, और तवाइफ क्या जाने खानदान, इज्जत और मोहब्बत की ताकत को। हीरा के कदम रुके, उससे मुठ्ठियां भींची, ये उसकी दुखती रखती। वो उल्टे कदम वापिस आई और यूसुफ की एक ठोकर मारी। तुम सब अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हो। यूसुफ बिलबिला के रह गया। उसमें जोश के अलावा कुछ बाकी नहीं था। परिसा की आंख खुली तो फजर का वक्त था। उसने लंबी सांस लेके अपनी दाईं तरफ देखा तो वो नहीं था जिससे होना चाहिए था। उसने उठ के देखना चाहा तो नजर सामने गई। सुल्तान सजदे में था। सुबह का ये पुरनूर मंजर काफी कुछ कह रहा था। परिसा के दिल में एकदम हलचल हुई। वो सजदे से उठ के दोबारा सजदे में गया। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, और ये कैसे मुमकिन था कि वो खुदा की रजा ना लेके जाता। अगर खुदा राजी हो तो वो सजदों की तौफीक देता है। वो यूं नमाज पढ़ रहा था जैसे उसे कोई टेंशन ना हो, जैसे उसे कोई फिक्र ना हो। वो पढ़ के हटा तो दुआ के लिए हाथ उठाए। वो कई लम्हे अपने हाथों की लकीरों को देखता रहा। क्या था उनमें? उसके जहन में गुजरे सब लम्हे फिल्म की तरह दौड़ के। सूरज की किरणें हल्की हल्की से निकल चुकी थी। वो काफी देर से बैठा था। वो यहाँ से उठना नहीं चाहता था। अगर वो नाकाम हो गया तो, अगर वो उसे ना बचा सका तो, अगर वो फिर से बिछड़ गया तो। वो काफी देर से मांगने की कोशिश कर रहा था, मगर हालत ऐसी थी कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। लफ्ज उसके मुंह से निकलने से इनकारी थे। उसके लब कप कपाए। जो भरम रखना चाहता था वो अब किसी भी रिश्ते को खोने की हिम्मत नहीं रखता था। वह मर जाएगा अगर अब आजमाइश आई तो। उसकी आंखें भरी हुई थी, मगर आंसू नहीं निकल रहे थे। वो कैसे समझाए उस कैफियत को। इससे पहले वो कुछ कहता, कोई नरम नाजुक सफेद हाथ उसके हाथ से टकराए। उससे जरा से गर्दन तिरछी करके देखा तो परिसा सफेद दुपट्टा लपेटे उसे देख रही थी। दोनों की नजरों का तसादम हुआ। वो समझ गया था कि वह अकेला हरगिज नहीं। वह उसे यूं ही देखता रहा, आंखों में दर्द लेके, आंखों में डर लेके। परिसा के हाथ उसके हाथ के साथ उठे हुए थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, खुदा हमारे हक में बेहतर करे। अल्लाह आज हमें ताकत दे, सब्र दे और हिम्मत दे। वह आहिस्ता से बोल रही थी। वो खामोशी से सुन रहा था। वह कैसे भूल गया था कि वो तो उसकी ताकत थी। आमीन। और बस इतना ही बोल पाया था। परीसा ने उसके हाथों को पकड़ के उसके चेहरे पर फिरा था। फिर अपना रुख उसके सामने किया, उसके हाथ पकड़ के आंखों पे लगाया। फिर दोबारा से बोली, सुल्तान, आपको पता है फिरौन गुनाह क्यों करता था? माफी मांगता था, फिर गुनाह करता था, फिर माफी मांगता था।
اللہ ने उसे जब तक माफ़ किया जब तक उसने माफ़ी मांगी। वो तन्हाई में इकरार करता था मगर दिन में मुनाफकत करता था। फिर जिस दिन उसकी ढील ख़त्म हुई, उसकी दराज रस्सी जब अल्लाह ने खींची तो उसका अंजाम आप भी जानते और ये दुनिया भी। हम फिरौन नहीं हैं सुल्तान जिसे सज़ा मिलेगी। हम अल्लाह के बंदे हैं। मूसा की तरह हमें इंसाफ भी मिलेगा और फतह भी। अपना यकीन ईमान कायम रखें और हिम्मत रखें, सब ठीक होगा। हम अमीशा को ज़रूर बचा लेंगे। पूरी फोर्स हमारे साथ है। तस्मिया है, तहीर है, हम सब हैं। कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने ही नहीं देंगे। सुल्तान ने एक नज़र भर के उसके दूधिया से मासूम चेहरे को देखा तो उसे रोशनी की किरण दिखाई दी। अगर मैं हार गया तो? मायूसी कुफ्र होती है सुल्तान, और इस डर को बता दे कि आप कम नहीं, यू आर अ फाइटर। आपको वो मिलेगा सुल्तान जो आपको चाहिए। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। परीसा की आंख से आंसू निकला। वो इतने दावे से कैसे कह सकती थी? सुल्तान ने उसका हाथ अपने लबों से लगा के गाल पे रखा। मुझे छोड़ के नहीं जाना बीवी, नहीं तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं जाओगी ना? वो ना जाने क्यों ये पूछ बैठा। परीसा उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथों से निकाला, फिर एकदम बोली, चलें उठे। तहीर, रानिया और तस्मिया आपका वेट करें। सुल्तान उसे देखता रहा। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं पहले अपनी माँ से मिलूंगा। परीसा ने मुड़ के उसे देखा। मेरी माँ को 2 गज का कफन पता नहीं नसीब हुआ कि नहीं, मगर वो जगह जहाँ मेरी माँ ने अपनी जिंदगी गुजारी वो जगह मेरी अपनी है। मैं वहाँ अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। परीसा ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे रोका। हालांकि पहले क्या कुछ नहीं हुआ था। सुल्तान ने कदम बाहर की जानिब किया जबकि परीसा ने दोबारा पुकारा। फिर चल के करीब आई और उसके चेहरे पर प्यार से फूंक मारी। फिर दोबारा बोली, अल्लाह की अमान में। मैं क्या करूं? ये कुछ बोलती नहीं। ऐसा लगता है कि उसे अब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली बाबा, मैं क्या करूं? देख सताइश, हर चीज वक्त मांगती है। उसे वक्त दे। उससे मायूसी की बातें मत कर। हम नहीं जानती ये औरत किस हाल से आई है। बस उसे जिंदगी की तरफ लाना है। हो सकता है अल्लाह ने हमें उसकी मदद का वसीला बनाया हो। इसलिए सताइश, हर चीज अपने वक्त पे होती है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये बोलेगी भी और सुनेगी भी। ठीक है बाबा, मैं खाना बना देती हूँ। उसके वजूद को खाने की और ताकत की ज़रूरत है। उसकी आंतें सूख चुकी हैं, उसे कुछ हजम नहीं हो रहा, मैदा काम नहीं कर रहा। हमें उसका ख्याल करना होगा। उस झोंपड़ी में सोई हुई मेहरू महसूस कर रही थी कि बात उसके बारे में है। शायद अल्लाह ने वक्त को ठहरने का हुक्म दे दिया था। हो सकता है अब हवाओं का रुख मोड़ा जाए। हो सकता है अब चिंगारी कहीं और भी लगे। हो सकता है अब काया पलटी जाए। हो सकता है अब मात शय मात में तब्दील हो जाए। हो सकता है। आज बहुत बड़ा दिन है मार्था। आज बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं तैयार हूँ आर्थर। मुझे यकीन है आज सब ठीक होगा। आज मुझे मौका मिलेगा अपनी काबिलियत दिखाने का। मैं जानता हूँ मार्था, तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो, मगर फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। क्यों? वो आहिस्ता से बोली, तुमने सुल्तान की हालत नहीं देखी? मैं नहीं चाहता मेरी कभी ऐसी हालत हो जो ना जुबान से कह सकूं ना आंखों से। सुल्तान बर्दाश्त कर रहे हैं मगर मैं नहीं कर सकता। वहाँ कुछ भी हो सकता है और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। टेररिस्ट से मिल चुके हैं। बहुत से मासूमों की जान लेते हुए उनके हाथ नहीं कांपे मारता। मैं नहीं मारता। मैं ये नुकसान नहीं उठा सकता। आर्थर, आर्थर, पुरसकून हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है सुल्तान हमेशा के चक्कर में हमें भूल गया? तुम जानती नहीं हो मगर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मंगवाई गई हैं। कुछ नहीं होगा। ये जंग किसी और तरफ चली गई है। सुल्तान हमारे साथ है। अंडर कवर तहीर है और फिर रानिया और उसकी टीम भी तो है। उसने उसके हाथ थामे। आर्थर, लंबी सांस लो। आज बहुत कुछ बदलेगा मगर सब अच्छा होगा। जानते हो ना, बहुत से लोगों को आज हमारी ज़रूरत है। आज हम पीछे नहीं हट सकते। क्या हुआ अगर जबरील ने साथ नहीं दिया? मगर हम हैं। वो एक कसम से बोली थी। आर्थर उठ के उसके सामने बैठा था। वो बेड पे बैठी थी जबकि वह घुटने नीचे रख के बैठा था। उसने उसके हाथों को थामा। वो कुछ कहना चाहता था, शायद कुछ ऐसा जो वो कह नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा जो हलक से निकलने से इनकारी था। वो कैसे कहे, कैसी अपनी कैफियत समझाए, कैसे? मार्था उसे एकटक देखती रही और नजर चुरा रहा था। क्या बात है आर्थर, क्यों घबरा रहे हो? मार्था, उसने हौले से पुकारा। मैं जिंदा हूँ। हर चीज महसूस करता हूँ। हर दर्द, हर अजियत की वजह मेरी माँ है। उसने मुझे जन्म दिया, ये बात तकलीफ है। मेरी माँ ने मेरे बाप को भी मारने की कोशिश की। वो ये सब करने से नहीं घबराए। आज तक मेरी माँ ने मुझसे जो भी कहा सब एक फरेब था, जाल था। वो हसद और ताकत के नशे में इतनी अंधी हो गई है कि अपनी फैमिली तक को निकल गई। एक बार नहीं सोचा कि मैं कैसे सर उठाऊंगा।
मेरी माँ के सर पे बहुत बड़े गुनाह हैं और मुझे उस बात का यकीन है कि वो अपने लिए मुझे या तुम्हें मारते हुए भी एक बार नहीं सोचेगी। जानती हो, आज तक हमें ही हार हुई है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानती हैं हमारी कमजोरियां क्या हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और मैं नहीं चाहता, और मेरा दिल इजाजत नहीं दे रहा कि तुम जाओ। आर्थर, उसने बेयकीनी से पुकारा। नहीं मार्था, प्लीज, तुम हो तो इसलिए ये जंग अभी तक लड़ रहा हूं। तुम्हारे होने से ही मैं हूं। ये मेरे बस में नहीं कि तुम्हें कुदरत के हवाले छोड़ दूं। बस आर्थर, बस। क्या हो गया तुम्हें? पहली बात तो ये दिल से निकाल दो कि तुम अपनी माँ के किए के जिम्मेदार हो। नहीं आर्थर, हरगिज भी नहीं। हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं कि तुम उसकी औलाद हो। और वक्त से पहले फैसले मत करो। इतनी मायूसी का शिकार मत हो आर्थर। यह गलत है। वो आगे हुई, दोनों हाथ उसके गाल पर रखे तो आर्थर ने उसे नम आंखों से देखा। मुझे कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जानती हो, जिसके साथ ऐसी मोहब्बत हो, भला वो कैसे दुनिया से ख्वाबों से मुंह मोड़ दे। नहीं आर्थर, खुदा के बाद किसी में भी इतनी ताकत नहीं आई जो मुझे तुमसे जुदा कर सके। और खुदा इतना बेरहम नहीं कि मुझे और तुम्हें अलग कर दे। वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है हमें। यकीन रखने आर्थर, और ये हमारा फर्ज है। अब बस। उसने दोनों हाथों से उसकी आंखें साफ की। उठो आर्थर, उससे हमारी जरूरत है और हम यूं इस हालत में पीठ नहीं दिखा सकते हैं। आर्थर ने सर इस बात में हिलाया और फिर आहिस्ता से बोला, इतनी पॉजिटिविटी कैसे? मार्था ने उसे घूर के देखा, फिर आहिस्ता से बोली, क्योंकि मायूसी कुफ्र होती है। अगर मैं भी मायूस होगी तो यूं समझो कि जीती हुई जंग हार जाएगी। तो तैयारी रखो आर्थर, बुलावा आने वाला है। उसने उसे देखते हुए सर इस बात में हिलाया। अब उसके जबड़े भींचे हुए थे, आंखों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो मुकम्मल तैयार था, पुरजोश था। आज सबका इम्तिहान था। अभी भी वक्त है ताहिर, अपने ठिकाने पे लौट जाओ। ये जंग तुम्हारी नहीं, ऐसा ना हो कि तुम जान से जाओ। ए, कैसी जुबान है तुम्हारी? बंदा जोश दिलाता है, मोटिवेट करता है, और तुम कह रही हो कि ताहिर यहाँ से डर के भाग जाओ। इम्प्रेसिव। मैं तो सीधी बात करती हूँ, हकीकत पसंद हूँ। उसे हकीकत पसंदी नहीं कहते, उसे बेहिसी होना कहते हैं, जिससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जो होता है होता रहे। तस्मिया ने रुक के उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं बेहिस नहीं हूँ। अगर होती तो सुल्तान का साथ एक मासूम को बचाने के लिए नहीं दे रही होती। सीधा सीधा अपनी माँ का बदला लेके निकल जाती। और तुम तो कानून के रखवाले हो ना, तो तुम्हारे उस कानून ने आज तक इंसाफ नहीं किया। असल बेहिस तो वो है जो मुजरिमों को खुला छोड़ देते हैं और मासूमों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं। ताहिर ने उसे देखा। इतनी नफरत मत करो, कानून सबूत पर मुनहसिर है। नहीं ताहिर, खुद को ये झूठा दिलासा नहीं दो। कानून उसका पाबंद है जिसकी जेब में ताकत है। अगर ऐसा है तो रानिया तुम्हारे साथ क्यों है? तस्मिया में इस जंग में शामिल क्यों हुआ? है कोई जवाब? तस्मिया ने उसे देखा, फिर आगे होकर ठंडे ठार लहजे में बोली, जीतता वही है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। तहीर लाजवाब हुआ। खैर, कुछ खा लो, कहीं ऐसा ना हो वहां तुम भूख से गिर जाओ। तहीर के कान सुर्ख हो रहे थे, वो खुद भी जबत कर रहा था। उस लड़की की जुबान चलती बहुत थी, उससे सर टकराना फजूल था। क्या तुम श्योर हो? कुछ देर पहले। अब मेरी बात गौर से सुनो। एग्जैक्ट तो नहीं, मगर ये काफी हद तक पता चल गया कि वो लोकेशन किस तरह की है। मतलब कि अमीशा को किस तरह की जगह पे रखा गया। क्या वाकई? सुल्तान ने पूछा था। हाँ, अमीशा की वॉइस हटा दी है। वहां पानी के कतरों की आवाज थी, कीड़े मकोड़ों की आवाजें, और सबसे ज्यादा चलने की आवाज। और ये वाजिया आवाज वहां मालूम होती है जहां कोई ना रहता हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो। और रही बात सिम की, तो वो तोड़ दी गई है। मगर जब अमीशा की कॉल आई, उस वक्त ये मुल्तान के आखिरी हिस्से में थी और उससे आगे जंगल शुरू होता है। हो सकता है कि ये उस साइड पे क्यों कहीं रखी गई हो। अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा सुल्तान। हमें सिर्फ एक सुराग चाहिए था और बहुत से सबूत है अब तो। और अभी रानिया ने कहा उस इलाके को हर जगह से नाकाबंदी करवाई गई है। अगर वो चाहे भी तो उसे फौरी तौर पर लेके नहीं जा सकते, ना ही भाग सकते। वो जगह वो हर तौर पर सील करवाई गई है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं जानती। वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम पूरी तैयारी से जाएंगे सुल्तान। पूरी पुलिस का सपोर्ट हमें मिला है। हमारे वो पूरे टारगेट में है। वो चाहे भी तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो वो भी जानते हैं कि ये उनके लिए नुकसानदा होगा। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाया, फिर एक ब्लूप्रिंट निकाला और उसे सामने रखा। अगर सब वैसा है जैसा कि बताया गया है तो ये बेहतरीन रास्ता है वहां जाने का। सबसे पहले हमें दरवाजे से एंटर नहीं होंगे, ये हमेशा के लिए खतरा होगा। हम जाएंगे इस साइड से।
उसने ब्लूप्रिंट को उल्टा किया। ये रास्ता सीधा हमें उस तक ले जाएगा। इस बिल्डिंग में टोटल 12 कमरे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है। हमें ढूंढना होगा। हल्की सी गलती उसकी जान पे आ सकती है। और बाईं तरफ सीधा सीढ़ियां हैं जो सीधा 3rd फ्लोर पर जाएगी। सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। हम 4 ऊपर 4 नीचे। मार्था और आर्थर तब आएंगे जब हमें उनकी जरूरत होगी, मगर हमें कुछ हिंट रखना होगा। हाँ सिटी। क्या? ताहिर ने पूछा। हाँ सिटी। मेरी सिटी की आवाज इस कदर है कि दूर बैठे वो भी सुन लेगी, जिसके इशारे पे ये सब हो रहा है। ठीक है, यही याद रहे कि ये सिर्फ एक मदद होगी और ये जब हमें ज्यादा जरूरत हो। लेकिन सुल्तान, सबसे पहले हमें उसका ध्यान थोड़ा हटाना होगा। वो काम हम पे छोड़ दो, ताहिर ने कहा और एक नजर साथ खड़ी तस्मिया को देखा जो मुस्कुराई। ठीक है, अब आगे दाखिल होने के सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है, नजरों में आए बगैर। ताहिर के साथ तस्मिया और एक पुलिस वाला होगा, नीचे रानिया होगी और उसके साथ 3 और पुलिस वाले होंगे। क्या जबरील नहीं आएगा? सुल्तान ने तस्मिया को जख्मी नजरों से देखा, फिर खुद को मसरूफ जाहिर किया। नहीं, आप ही को उसकी ज्यादा जरूरत है। कोई नहीं, हम काफी हैं उसका सर उतारने के लिए। जो भी करना सोच समझ के करना। हल्की सी गलती किसी पे बहुत भारी हो सकती है, मैं जानती हूँ। रानिया अगले ही लम्हे आके आई। अगर सुल्तान, क्या ये हमें भटकाने की कोई चाल हुई तो? मतलब? तस्मिया ने पूछा। जरूरी नहीं कि वही सब हो जो कुछ दिख रहा है। अगर ये सब चाल हुई, हमें सिर्फ उस तरफ लगा कि ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और ही प्लान कर रही हो। तुम ठीक कह रही हो सुल्तान, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तस्मिया पुरसोच अंदाज में बोली। जुबान रुके तो दिमाग चले ना। तहीर बड़बड़ाया। अपने अपने घरों पे गार्ड रखवाओ, कोई रिस्क मत लो और जो प्लान है वही होगा। सुल्तान ने अपने बंदे हाथ खोले। अब वक्त है उसे बचाने का, जिसके लिए उसने कई साल इंतजार किया। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए। ये बेवकूफ़ी शायद दूसरी बार की गई थी। सोच लो, अभी भी वक्त है, जरूरी तो नहीं माँ से मिलने के लिए हवेली ही आना है। तुम नहीं समझ सकते वलीद, उस वक्त मुझ पे हमला मेरे ही डर ने किया था, मगर अब मुझे ना कोई खौफ है ना कोई डर। तुम बाहर रुको, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करना। मैं नहीं जानता दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। जरूर मिलेगा सुल्तान, जरूर मिलेगा। सुल्तान ने वलीद का कंधा थपथपाया और अंदर दाखिल हुआ। हवेली का रुख आज भी वैसा ही था, जहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था, जहां किसी की चीखें गूंजी थी, जहां कोई इंसाफ के लिए तड़पा था, जहां बुराई ने अच्छाई को मात दी थी। यह घिनौना सच हमेशा कोड़े की तरह डसता था। रूप हर बार नया निकलता था। यहाँ की हवा ने उस बात को यकीनी बना लिया था कि जो भी होगा बुरा ही होगा, ना इंसाफी से ही होगा। वक्त ढलता है, उभरता है, फिर ढलता है, मगर खत्म नहीं होता। पता है, ये दुनिया ना कुदरत के असूलों पर चलती है। जब कुदरत ने ये कह दिया कि हर चीज का है बदला, हर अच्छाई और बुराई का है, फिर कैसे सोच लिया, कैसे मान लिया कि लिली को जला दिया तो सबूत खत्म, कहानी खत्म होगी। मेहरू और गाजियान को बंदी बनाया तो बाजी मिल गई। हर चीज अपना वक्त लेके आती है और बुराई का वक्त तब तक है जब तक कुदरत की रस्सी दराज है। जिस दिन ये रस्सी खींची गई तो हर फिरौन का वही हाल होगा जो फिरौन का होता था। बस खुद को उस जात के लिए मख्तिस कर लो। वो अंदर दाखिल हुआ तो जो झूमर गिरा हुआ था वो वैसे ही था, मगर उसके चंद हिस्से गायब थे। कि हवेली सुनसान जंगल की तरह थी, जिसको हुकूमत भी गिरा नहीं सकती थी। वैसे भी वो प्रॉपर्टी उसका हिस्सा थी, वरासत थी, वो उसे कभी गिराना नहीं चाहेगा। उस झूमर के साथ लाल रंग वैसे ही कायम था। वह पल भर के लिए मंजमद हुआ। क्या ये निशान उसके खून के थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह वक्त गुजरे काफी देर हो गई थी और ये निशान इतने पुराने नहीं थे। वो आगे बढ़ा बिना खौफ के। हैरत की बात थी, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वो आहिस्ता से नीचे बैठा, खून पे अपनी उंगलियां मसली तो उसकी मखमली उंगलियों पे हल्का सा निशान पड़ा। वो खून जो जम चुका था या पापड़ी की सूरत में उतरा, उसके माथे पर बल आए। उसे यहाँ वहां देखा, उसे कुछ समझ नहीं आए। फिर उसने पास पड़े एक पत्ते को उठाया और वो जमा हुआ खून पापड़ी की सूरत में ही उस पत्ते पर रखा और उसे अच्छा से लपेट के अपनी जेब में डाला। ये अमल बेख्तियार था, बिना सोचे समझे था। ये करने के बाद वो आगे राहदारी के बने उस हिस्से में बैठ गया जो लंबी की तार से भरी थी। उस पे चढ़ के फिर जाया जाता था। वो वहां बैठ गया जैसे अब तसल्ली से एक लंबी गुफ्तगू करने वाला हो। माँ, उसके लब हिले। वो कई बार ऐसे ही तन्हाई में अपनी माँ से हम कलाम हुआ था। माड़ा, उसके लब फिर हिले। दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ, उसके लब मुस्कुराए। वो आज भी अपनी माँ के हुस्न पे मरा था। याद है मीशू, एक बार तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि बाबा तुम्हें खूबसूरत कहेंगे या मेरी माड़ा को, और उस जवाब पे तुम रोई थी। मेरी माँ आज भी खूबसूरत है। माँ, मेरे लिए दुआ करना। मैं आज मीशू को सही सलामत वापस लिया। मुझे नहीं पता वो किस हाल में होगी, वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि आज जो मर्जी हो जाए, मगर मैं उसे जरूर बचा लूंगा। वो जिन हाथों में है वो बहुत खतरनाक है माँ।
पता है, उन लोगों ने मासूमों को नहीं छोड़ा, मेरे तो फिर दुश्मन है। मुझे आपकी दुआएं चाहिए माँ। आज मात, आज शिकस्त हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कबूल नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में बरसों से है, मगर आज मैं आपसे पूछना हूँ। जो नजर आ रहा है वो ये है कि हीरा ने ये सब जाम के लिए किया, मगर वो ये अच्छे से जानती थी कि जाम सिर्फ आपके पास है। हालांकि मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो उस वक्त चाह के भी हासिल नहीं कर सकता था। तो फिर हीरा ये जानती थी कि अगर आपको मार देगी तो वो जाम कम से कम अगले 18 साल तक हासिल नहीं कर पाएगी। आपकी मौत में उसका ज्यादा नुकसान था, तो फिर उसने आपको क्यों मारा? आपकी जान उसके लिए ज्यादा कीमती थी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ जाम का पता मेरे नाना को है, यानी मिराज अलाउद्दीन बाबा। उसने पलके उठाए, कुछ राज अफशा हुए। कुछ अरसा कबल। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? माँ ने हमेशा हमें नाना से दूर रखा, न कभी मिलने दिया, न कभी नाम बताया। या आप भी जानते हैं कि हमारी लाइफ वैसी थी जैसे माँ ने की। हम कभी भी नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं थे। हमने कभी अपने नाना को देखा ही नहीं। रही बात मार्था की, तो वो सच नहीं बताएगी, मगर मैं जानता हूँ उसे भी सच मालूम नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है जितना उसको बताया क्या। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम नाना को अब कैसे ढूंढे, अगर जाम का पता उनके पास है। गाजियान ने बेटी को देखा। तुम जानते हो सुल्तान, हर सवाल का जवाब होता है अगर जीतना हो तो चाल बदली जाती है, राजा रानी नहीं। और हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। इतना कुछ सोचने का वक्त कहाँ है बाबा? हर चीज तो तबाही के दहाने पे खड़ी है। ऐसे में एक ही हल है कि नाना को ढूंढा जाए, मगर कहाँ? कहाँ से शुरू करो? सुल्तान, उन्होंने आयशा से पुकारा। उसने रुक के उन्हें देखा। वो उसे बड़ी मीठी नजरों से देख रहे थे। तुम इतने जल्दबाज कब से हो गए? बाबा, अब भी अगर जल्दी ना की तो सब खत्म हो जाएगा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे पहेली का जवाब जानने पे उसकी माँ मुस्कुराया करती थी। आराम से सोचो सुल्तान, सब कुछ सामने है। गाजियान फिर से मुस्कुराए थे। सुल्तान रुक के उन्हें जरा ताज्जुब से देखता रहा था। वह बराह रास्त उनकी आंखों में देख रहा था। पीछे गुजरी बहुत सी बातें उसके जहन में आई। याद रखना सुल्तान, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे नाना सबसे पहले आएंगे। और उसे कई बार अपनी माँ की जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे में उसे किसने बचाया था? उसके दिमाग में एकदम कुछ क्लिक हुआ। पहले उसने आंखें सुकेड़ी, फिर उसकी आंखें फैली, फिर माथे पर बल आए थे। फिर वो बेयकीनी की तहत यकदम चिल्लाया, क्या वाकई? गाजियान यकदम हंसे। सब कुछ तुम्हारे सामने था सुल्तान, तुमने ही समझने में देर कर दी। मतलब हीरा ठीक कह रही थी, जाम का पता मुझे मालूम था। गाजियान ने सरस बात में हिलाया। ओ मेरे खुदा, मुझे कई बार लगा जैसे मेराज बाबा से मेरा कोई रिश्ता है, मगर हकीकत को मान रहा था। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेराज बाबा मेरे नाना है। आहिस्ता बोलो सुल्तान, दीवारों के भी कान है। अगर ये खबर उस तक पहुंच गई तो मेहरू के बाबा और मेरे ससुर जी की जान को खतरा हो सकता है। वो मिराज बाबा को जानती है, मगर ये नहीं जानती कि जाम असल में उनके पास है। अगर सुल्तान वो जान गई ना, तो मेहरू की तकलीफ में हम इजाफे का बायस बन जाएंगे। गाजियान बेहद आहिस्ता से बोले, और मैं ये होने नहीं दूंगा। हीरा ने मुझे अपने पास रखा, इसलिए नहीं कि वो खुद को बुलबुलें बताती रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस जुदाई पे मेरे बच्चों की जान बची थी। इसलिए वो जो कहती गई मैं मानता क्या, मगर वो कौन है ये मैं बहुत पहले से जानता था। तुम्हारी माँ मेरी बीवी है, और उससे मैंने ये सीखा है कि अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है। जानते हो, मार्था को बाबा के पास छोड़ना मेहरू का फैसला था, मगर उसे वहां ही रखना मेरा फैसला था। और हीरा के दिमाग में ये बात मैंने डाली कि बाबा को किस तरह इस्तेमाल करना है। वह करती गई जो मैं कहता क्या, उसने किया, और उसने जो कहा उसकी नज़र में मैंने वो माना। और ये बेहतरीन तरीका था सुल्तान अपने रास्ते के हल का, अपनी बातें मनवाने का। मैं एक अरसे से उसके दिमाग से खेल रहा हूँ। मुझे इस हादसे के बाद जब होश आया तो उसने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि मैं ये राज जान के हूँ। उस वक्त मुझ पे सब हकीकतें खुल चुकी थी। फिर मुझे समझ आया कि उसने मुझे क्यों बचाया। जानते हो, वह हर रोज बातें करने आती थी। पता है क्यों? सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए। मेहरू ने उससे उसकी मोहब्बत छीनी तो उसने उससे उसकी दुनिया छीन ली। गाजियान कह के आहिस्ता से खामोश हुए, फिर एक लंबी सांस भरी। बाबा, सुल्तान ने नम लहजे में पुकारा था, यू आर अ फाइटर, मगर तुम्हारी माँ से कम हो। असल फाइटर वो थी सुल्तान, मगर मैं चाहता हूँ तुम अपनी माँ की तरह लड़ो। अच्छाई को हारने मत देना, और हीरा की जीत अच्छाई की हार होगी। गाजियान ने आहिस्ता से उसका कंधा थपथपाया। सुल्तान ने अपने बाबा को देखा, फिर आहिस्ता से खड़ा हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये जंग अब सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि उस कुदरत की भी है। मैं आपसे मिलूंगा तब, जब सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने ससुर के साथ रहें। आखिर फिर वो जरा शरारत से बोला था, जाओ सुल्तान, मेरी और मेहरू की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह की अमान में बाबा। हाल, मुझे नहीं पता माँ आज क्या होगा। मुझे डर है कि अगर मैं कामयाब ना हो सका
या मैं उसे बचा ना सका तो वह मेरा सबसे बड़ा खसारा होगा। पता नहीं माँ, आप क्यों चली गई? आपको नहीं जाना चाहिए था। हर एक को आपकी ज़रूरत है। बहुत कुछ मेरा मुंतज़िर है, बहुत कुछ है माँ, जो मेरे कंधों की ज़िम्मेदारी है। मैं बहुत जल्दी यहाँ लौट के आऊँगा। माँ, मेरा इंतज़ार करना। कह के वो उठा। बाहर वलीद उसका मुंतज़िर था। क्या हवाओं का रुख बदलता था? वो आहिस्ता से मुड़ा तो आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो उस हवेली के आगोश में सोना चाहता था। उसका ये असल घर था, जहाँ वो कभी अपनी माँ के साथ रहता था। यहाँ वो हमेशा जाने के लिए ही तो आता था। वो अपने ख्यालों में था जब सामने रखे गमले पे उसकी ठोकर लगी और वो गमला नीचे गिरा। उसके गिरते ही वो गमला गोल गोल घूमा और उसमें से एक अंगूठी लड़कती हुई नीचे गिरी। उसके कदम फरीस हुए। उसे जरा गौर से देखा तो वो लफ्जों की अंगूठी थी। एक ऐसी अंगूठी कि उसे पहले वाला कोई कोड वर्ड या कोई मैसेज छोड़ सकता था, जो सिर्फ उसको पता था, जो उसे हल करता था। उसने आगे बढ़ के उसे उठाया, मतलब उसकी छठी हिस्स ठीक कह रही थी। यहाँ कोई और भी आया था, मगर कौन? उसने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं था। उसकी आंखों में सवाल थे। वो वापस मुड़ा उस अंगूठी को उसने संभाला और कदम वापस के लिए मोड़े, क्योंकि सुल्तान हमेशा वो करता था जो सही होता था। कुछ देर बाद, सिर्फ ये वक्त है पास, ठीक 1 घंटा यानी 60 मिनट, और जो करने हैं उसमें करना है। तस्मिया और तहीर के पास गन मौजूद है। सुल्तान आहिस्ता से बोल रहा था। रानी और बाकी सब सुन रहे थे। रानिया यहाँ मौजूद थी तो वजह सुल्तान की दोस्ती भी थी। सब ने जैकेट पहन रखी थी जो सुल्तान ने दी थी। वह रिस्क नहीं ले रहा था, कुछ भी हो जाए मगर कोई किसी से अलग नहीं होगा। उसने वाज़िया तौर पर कहा था, सब वही करेंगे जो डिसाइड हुआ। याद रहे, गलती की माफ़ी नहीं मिल पाएगी। वहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई खुद से कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ऑल राइट? उसने तस्दीक चाही। ऑल राइट। उसने सबको एक नज़र देखा। अब वो वक्त था जिसमें बहुत कुछ बदलने जा रहा था। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। अब गम हो या खुशी, हार हो या फतह, सच हो या झूठ, अब कदम बढ़ा लिया गया था। अब जो होगा देखा जाएगा। सुल्तान मगर मुतमिन नहीं था। ठीक 10 मिनट बाद उन्होंने निकल जाना था। सुल्तान, तस्मिया ने पुकारा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो आपको डिस्टर्ब करे। उससे एक नज़र उसे देखा। क्या मैं खुद गर्ज बन रहा हूँ? ये जंग मेरी है, उन सबको क्या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? आओ मेरे साथ। तस्मिया ने कहा था। वो बगैर कुछ कहे चल दिया। आओ देखो, सामने तहीर था। देखो इसको, ये वो है जो बस मासूमों के लिए लड़ता है। ये अपनी जान खतरे में डाल के याकूत के सुराग ढूंढने आया था। उसे देखो रानिया, ये वो है जो इंसाफ के लिए लड़ती है, जो कानून की रखवाली है। और रही बात मेरी, तो ये जंग जितनी आपकी है उतनी मेरी भी। यहाँ कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है। ये लोग यहाँ हैं तो वजह ये है कि वो खुद भी यही चाहते हैं। अब उनसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। सब अपना फर्ज निभा रहे हैं सुल्तान। क्या ये जंग इंसाफ की नहीं? क्या ये जंग अच्छाई बुराई की नहीं? तो फिर कैसे आप खुद गर्ज हुए? अगर आपकी माँ मरी तो मेरी माँ को भी जिंदा जलाया क्या था? रानिया और तहीर के लिए मासूमों को जलाया क्या? ये जंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सबकी है। साथ ही बिजली कड़की थी। सुल्तान ने मुड़ के देखा था। ये मौसम भी आज बिन मौसम के बरसना क्यों चाहता था? आज हमें कोई नहीं रोक सकता, जानते हो। ये वो सब भी चाहते हैं कि सुल्तान आज जीत हमारी हो और इस पाक पानी की बूंदों में उसकी हर बुराई मिट जाए। वो भी आगे आया। चलो तस्मिया, एक बहुत बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। तो उसे लेके यहाँ से निकल नहीं सकते थे? वो धाड़ा। हर जगह उस मनहूस से नाकाबंदी करवा दिया। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो? उससे मुंह पे हाथ रख के उसे सख्त नजरों से घूरा था। यूसुफ चुप था। उसकी मोहब्बत तुम्हारे सर चढ़ गई है क्या? तो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है? अगर ये उसके हाथ लगी तो सुल्तान हमारी बरसों की मेहनत हमारे मुंह पे मार देगा। अमीशा ने मुस्कुराती नजरों से देखा। लेकिन डैड, इससे पहले वो कुछ कहता, याकूत का भारी भरकम हाथ उठा और यूसुफ के चेहरे पर छाप छोड़ गया। अगर कुछ हुआ ना यूसुफ, तो हीरा को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहले उसे ठिकाने लगा। याकूत ने हकीर से देखा, जो आधे होश में थी। मैं कुछ करता हूँ, यहाँ से जल्द निकलना होगा। याकूत जैसे आया था वैसे ही निकल गया। उसके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि सुल्तान उसके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। यूसुफ ने बाएं तरफ थूका था, फिर जेरे लब बड़बड़ाया। साला बुड्ढा कहेगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने ही बाप का उस हकारत पे गला घोट दे। सुल्तान का ये प्लस पॉइंट था कि पुलिस फोर्स का सपोर्ट था। सब कुछ उसके सामने था। वो चारों उस इलाके में पहुंच चुके थे। ठीक 10 मिनट मीटर के फासले पे वो चारों एक कतार में खड़े थे। सामने वो सारा इलाका था, जगह जगह बिल्डिंग थी। यही वो इलाका है जहाँ का मैंने बताया था। क्या लगता है कौन सी बिल्डिंग है? देखते हैं। चारों ने एक साथ कदम उठाया था। सबसे पहले वो उस बिल्डिंग में गए जो सबसे पहले थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर जाएगी। यहाँ वो हमेशा को कभी नहीं रखेगा। उसकी नज़र सामने बिल्डिंग की तरफ गई। तस्मिया ने सर इस बात में हिला। सबसे पहले हमें वहां जाके जायजा लेना होगा। हम नहीं जानते वहां कितने लोग हैं, क्या है।
सुल्तान, ठीक कह रहे हो, मगर ये वक्त एक साथ अंदर जाने का है। तस्मिया ने कहा था, 1 मिनट सुल्तान, अगर हम बिना आवाज़ किए दो दो करके जाएं तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो तहीर, तो सबसे पहले सुल्तान जाएगा। तस्मिया ने सर इस बात में हिलाया। सुल्तान ने बिल्डिंग में कदम रखा। उसके साथ रानिया थी, दोनों के पास गन थी। उनके ठीक पीछे तस्मिया और तहीर थे। वो हल्का सा झुक के आहिस्ता आहिस्ता से चल रहे थे। उनके कदम रखने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आगे सुल्तान और रानिया थे। रानिया अपनी यूनिफॉर्म में थी, जबकि सुल्तान ने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। ऊपर जैकेट थी, हाथ में गन थी जिसका ट्रिगर दूसरे हाथ में था। वह अंदर दाखिल हुए तो सिगरेट धुएं पानी की अजीब से बदबू उनके नथनों से टकराई। न जाने कैसी हालत में उसे रखा गया होगा। उसका दिल जोरों से धड़का। तहीर और तस्मिया दोनों दीवार की ओट में होके खड़े होके। सुल्तान अंदर गया। हल्का हल्का अंधेरा था, बाहर मौसम कभी भी बरस सकता था। उसके बाल हौले से उड़ रहे थे। सुल्तान के थोड़ा सा पीछे बिल्कुल सामने तहीर और तस्मिया खड़े इशारे का इंतजार कर रहे थे। कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो हर वक्त अलर्ट थे। सुल्तान की नजर चील की मानिंद काम कर रही थी। उसने हल्का सा ट्रिगर का इशारा किया और दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ आगे की तरफ इशारा किया। सामने बाईं तरफ सीढ़ियां थी, नीचे सामने 2 कमरे थे। यूं लग रहा था कि जैसे ये फ्लैट बनाया क्या हो। सुल्तान ने आयशा से अपना कदम पहले सीने पे रखा। वो आयशा से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सबके जूतों पे कीचड़ लग चुका था। तस्मिया और तहीर दोनों कमरे की तरफ बढ़ के पहले कमरे का पहले दीवार की ओर से होके हाथ का इशारा दिया। फिर तहीर ने आहिस्ता से देखा, वहां कोई भी नहीं था। तस्मिया ने यही काम साथ वाले कमरे में दोहराया। दोनों एक साथ कमरे से निकले, फिर दोनों सरनफी में हिलाया। वह दोनों आहिस्ता से जीनों की तरफ गए। ऊपर से पानी टपक टपक के गिर रहा था। सुल्तान के कदमों के साथ साथ धड़कन भी बढ़ रही थी। वो चारों दूसरी मंजिल पर गए। सामने 2 कमरे थे और साथ ही जीने तीसरी मंजिल पर जा रहे थे। सुल्तान ने हाथ के इशारे से रोका। गलती से भी एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला था। उन्होंने वहां भी देखा, मगर कोई भी नहीं था। जितनी भी कोशिश कर ली जाए, मगर हल्की हल्की चाप जरूर सुनाई देती थी। वहां दूसरी मंजिल पे भी कोई नहीं था। अगर वो यहाँ हुई ही ना तो? नहीं, नहीं। सुल्तान के दिल ने एकदम नफी की। वो उसकी धड़कन को करीब से सुन सकता था। उसने इशारा तीसरी मंजिल की तरफ किया। हाँ, और वो मान ही नहीं सकते थे। तहीर ने इशारा किया, पहले वो जाएगा, देखेगा। सुल्तान ने इशारा किया, बाकी वो चारों एक साथ थे। तहीर कदम कदम आगे बढ़ रहा था। उन सबका वो आदी था। वो चलता चलता आखिरी जीने में पहुंचा। आगे बढ़ के पूरा फ्लैट था। कदम बढ़ाने के साथ एक खतरा बढ़ रहा था। तहीर ने आहिस्ता से अगला कदम दाईं तरफ रखा। इससे पहले वो दूसरा कदम रखता, कुछ उसके चेहरे पर बहुत जोर का लगा था। ए, सुल्तान एकदम चिल्ला के आगे आया। तस्मिया और रानिया आगे बढ़ी। तस्मिया ने तहीर को पकड़ा और रानिया आगे बढ़ी। तहीर 2 कदम पीछे गया। उसकी नाक पे कट आ गया था। तस्मिया ने उसे देख के पूछा था, आर यू ओके? उसने सर अस्पात में हिलाया। सामने मंजर ही कुछ और था। सामने कुर्सी पे एक लड़की बंधी हुई थी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसके साथ ही यूसुफ उस पे गन ताने खड़ा था। तहीर को जिससे मारा था वो 2 गार्ड्स थे, या यूं कहो तो यूसुफ के गुंडे थे, जो उन सब पे गन ताने खड़े थे। ए, सुल्तान ने चिल्ला के कहा। अमीशा की धड़कन रुकी। वह सुन सकती थी। हाँ, ये उसके सुल्तान की आवाज थी। सुल्तान का दिल मुट्ठी में आया। सामने बंधी लड़की जिसके चेहरे पर कपड़ा था, वह उसकी अमीशा थी। ओ मेरे खुदाया, वह उसके सामने थी। आज उसका बरसों का ख्वाब सच हुआ। कोई था जो उसे पुकार रहा था। आज हर सवाल का जवाब मिल गया था। हर राज खुल गया था। वो उसकी तरफ गन ताने तो खड़ा था, मगर नजर सामने लड़की पर थी जो उसका पहला ख्वाब थी, जिससे वो कभी भी इंतहा इश्क करता था। ये उसकी मीशू थी। हाँ, वह बंधी लड़की उसकी मीशू थी। क्या ये सब देखने के लिए वो जिंदा था? ओ मेरे खुदाया, ये घड़ी हर घड़ी से मुश्किल थी। मेरे अजीज दोस्त, वो चौंक गया जब यूसुफ की आवाज उसके कानों में पड़ी। सुल्तान ने उसे देखा। कौन हो तुम? यूसुफ एकदम कहका लगा के हंसा। बहुत देर लगा दी ये जानने में। सुल्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक कदम और आगे मत बढ़ाना, वरना उसका भेजा उड़ा दूंगा। नहीं नहीं। सुल्तान एकदम पीछे हुआ तो वो दोबारा कहका लगा के हंसा। बस, क्या चाहते हो? छोड़ दो उसे। सुल्तान ने अगले ही पल कहा। छोड़ दूं? यूसुफ ने जैसे तंज से पूछा था। अभी थोड़ी देर पहले का थप्पड़ भूला नहीं था। बाकी गुंडे यूसुफ के हुक्म के मुंतजर थे और यहाँ के बाकी सुल्तान के हुक्म। ये सौदा मैं नहीं चाहता। नो, यूसुफ ने जरा मजे से कहा। बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी लाश भी बाहर कुत्तों को नहीं मिलेगी। छोड़ दो उसे। सुल्तान की आंखें लहू रंग हो रही थी, ऐसे जैसे वह जुनूनी हो रहा था। उसके दिल पे उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज नक्श हो रहा था। उसके मुंह पे टेप थी। वो शिद्दत से देखना चाहते थे। 8। मैंने कहा उसे छोड़ दो, वरना वरना क्या?
आवाज तो मैं अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं करता सुल्तान। अगर उसकी सलामती चाहिए तो सबसे पहले तुझे मुझ पे हाथ उठाने की माफी मांगनी होगी। पहली शर्त उसके सामने रखी। सुल्तान को याद भी नहीं था कि उसने कभी उस पे हाथ उठाया था। कौन है तो? वो दोबारा चिल्लाया। 7। इतनी जल्दी क्या है? उसने एक हाथ से अपना मास्क खींचा तो एक चेहरा वाज़ेह हुआ तो सुल्तान दोबारा बोला। तो? हाँ मैं सुल्तान। मुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी तूने। उस दिन मैं मलिक को खत्म कर देता तो ये खेल ज्यादा दिलचस्प हो जाता। और दोबारा बोला। तस्मिया ने उसे देखा, उसे एक सेकंड का मौका नहीं मिल रहा था वरना पहली बुलेट उसके मुंह पे डालती। 6। अरे ओ चिशमिश, पहचाना तेरी खूबसूरत माँ। ये अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लें। वो ना बोली थी ना चीखी थी, वो धाड़ी थी। उफ ये अदा। यूसुफ कमीनगी से बोला। ताहिर को समझ नहीं आया कि क्यों खामोश खड़े हैं। ये गुंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि अगर अमीशा उनके पास ना होती तो पहला वार सुल्तान का होना था। 5। बस बहुत हो गया, अमीशा को हमारे हवाले कर दो और खुद को पुलिस के हवाले। रानिया ने कहा था। अरे ओ मैडम, ये मर्दों की जंग में मत आओ, बिला वजह मारी जाओगी। और रही बात इस चिड़िया की, तो बहुत कम बख्त चीज है। इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी, वो भी अपनी मर्जी से। सुल्तान ही जानता था कि उसने कैसे खुद पे सबक किया और हमेशा ही जानती थी कि वह कैसे लफ्जों को पी रही थी। 4। सुल्तान ने खुद पे कंट्रोल खत्म किया और अपने पास वाले गुंडे के मुंह पर एक मुक्का मारा। वो उस हमले के लिए तैयार हरगिज नहीं था। रानिया ने मौका का फायदा उठाया और घुमा के लात मारी थी। वो दूर जा गिरा। ताहिर को मौका मिला और उसने आगे बढ़ के उससे गन छीन ली थी। ए यूसुफ चीखा था। ये आगे मत बढ़ना, उसे उड़ा दूंगा। उससे गन का ट्रिगर दबा के हमेशा के सर पर रखा। ओके ओके। सुल्तान दोबारा पीछे हुआ। इतना बेबस वो कभी भी नहीं हुआ था। बाहर मौसम ने बरसना शुरू कर दिया था। हमेशा का एक सांस आ रहा था और एक जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि अब अगली सांस आएगी या नहीं। पता नहीं वो सुल्तान को देख पाएगी या नहीं। 3। उसे हाथ भी मत लगाना वरना तुम कभी आईने में अपना ये मनहूस शक्ल नहीं देख पाओगे, समझे? सुल्तान दोबारा बोला था। अब तो तू अपनी ये नाक रगड़ेगा और भीख मांगेगा, मगर इससे पहले क्या तो इसे देखना नहीं चाहेगा? यूसुफ ने फिर पूछा था। वह गुंडे तो चत पड़े थे। तो मैंने कहा उसे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो कर दो खुद को कानून के हवाले। एक मौका और दे रही हूँ तुम्हें, वरना तुम मारे जाओगे और कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। रानिया बोली थी। मेरा बाप सब कुछ कर सकता है। कौन है तेरा बाप? तहीर अब बोला था। वही जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले ही पल तहीर की नजर उसके टैटू पर पड़ी थी। मतलब वह याकूत का बेटा था। एक बोल मार दो इसे। 1 मिनट पहले तुझे उसका दीदार तो करवा तुम। एक झलक तो देख उसको। बहुत अकड़ है उसमें तेरी तरह, मगर मेरे बिस्तर पे तो ये आएगी, वो भी अपनी मर्जी से। सुल्तान ने दान भींच के गन को मजबूती से थाम लिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जुबान के जौहर पे वो कभी भी गन चल जाएगी और उसे कोई अफसोस भी नहीं होगा। अगले ही पल उसने खींच के वो कपड़ा हटाया। दोनों की दीवार हटी। दोनों की सांसें रुकी। 0। अमीशा ने नजर उठा के उसे देखा। उसे लगा अब अगली सांस की ताब उसमें नहीं। सुल्तान उसकी हालत देख के धक से रह गया। चेहरे पे खून लगा था, होंठ का किनारा फटा हुआ था, दाएं गोरे गाल पर थप्पड़ों के निशान वाज़िह थे। सुल्तान को पल भर के लिए खौफ आया। उसकी आंखों में तैरते सवाल थे, कुछ शिकवे थे, कुछ गिले थे। अरे ओ इधर। यूसुफ ने उसे अपनी तरफ किया। सुल्तान के गले की गिल्टी उभर के मादूम हो रही थी। हर कोई उसे तरहम से देख रहा था। तस्मिया को उसकी हालत पे यकीन नहीं आया। सुल्तान लाल सुर्ख रंग नजरें उठा के उसे देखा, क्यों जैसे वो उसे नजरों से ही निगल लेगा। बहुत कुछ था उसकी नजरों में। यूसुफ ने दांत भींच के उसे देखा था, फिर दोबारा ऊंची आवाज में ही बोला था। माफी मांग वरना। उससे अमीशा को बालों से दबोचा। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया। सुल्तान एकदम चिल्लाया। रुक जाओ, मैं माफी मांगता हूँ, उसे छोड़ दो। उसकी जरा सी तकलीफ पे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज भी उसके लिए सबसे खास थी वो। मैं मांगता हूँ माफी। उसने दोनों हाथ खड़े किए, गन को नीचे रखा और घुटनों के बल बैठा। हर कोई हैरत ज़दा हो गया था, वो इतनी जल्दी घुटने क्यों टेक रहा था। रुक जाओ सुल्तान, तस्मिया बोली थी। माफी मांग। यूसुफ दोबारा बोला। बाल अभी भी उसके हाथ में थे। तहीर कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये उसका मिशन भी नहीं था। सुल्तान ने उसे देखकर खुद को झुकाया। यूसुफ ने अमीशा के सर पर कुछ मारा। आह। वह हल्का सा चीखी। उसकी आवाज सुल्तान के कानों तक पहुंची थी। यहाँ सुल्तान की बस हुई और उसने गन को उठाया और जोर से यूसुफ के मुंह पर दे मारी। आह। यूसुफ वहीं पीछे की तरफ लड़का और ये वो वक्त था जब सुल्तान ने जल्दी से अमीशा को थामा। रानिया ने आओ देखा ना ताओ और एक और गन उसके मुंह पर दे मारी। उसके नाक से खून का फव्वारा निकल पड़ा। सुल्तान ने अमीशा को देखा। वो उसके बेहद नजदीक आया था। वो लपकप कपाए उसे देख रही थी। आंखों में आंसुओं की लड़ी थी। सुल्तान ने टेप उसके मुंह से उतारी तो खून उसके हाथ पे लगा था।
سلطان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا. یہ پہلی بار اس کے ہاتھ کا لمس تھا جو امیشا پہ پڑا تھا. پل بھر کے لیے وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئے. سلطان نے بغیر کچھ کہے اسے سائڈ پہ کیا اور آگے بڑھ کے ایک جنون سے یوسف پہ چڑھ دوڑا. تیری ہمت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی؟ ہاں. وہ جنونی ہو چکا تھا. وہ اپنے حواس میں بھی نہیں لگ رہا تھا. وہ اس پہ برسات کی طرح مکے برسا رہا تھا. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تیری جان لے لوں گا. انہیں ہاتھوں سے تو نے یہ سب کیا نا. کیسے اسے ہاتھ لگایا؟ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا. رانیہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا. پاگل ہو گیا, رک جاؤ. نہیں رانیہ, اسے میں نے زندہ چھوڑ دیا تھا مگر آج نہیں. رک جاؤ سلطان. اس نے جھٹکے سے اسے روکا. امیشا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا. آج اس کا بھی خواب پورا ہوا تھا. سلطان اس کے لیے لڑ رہا تھا. رانی کو بچانے آخر راجا آ ہی کیا تھا. رانیہ نے اسے روکا تھا. اب یوسف کے سامنے رانیہ کی پشت تھی اور پھر سلطان کھڑا تھا. اس کے سر پہ خون سوار تھا. اس سے پہلے یوسف دوبارہ اٹھ کے حملہ کرتا, سلطان نے گولی چلائی تھی اور سیدھا یوسف کی آر پار ہوئی تھی. پھر دوسری, پھر تیسری, پوری 6 کی 6 گولیاں یوسف کی آر پار ہوئیں. گولی کی آواز سن کے آرتھر اور مارتھا بھی آ گئے تھے. ہر طرف خون ہی خون تھا. سلطان گن ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا. آج اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. اس کی معصومیت چھن گئی تھی. وہ اب بھی اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا. جب آرتھر نے اسے سنبھالا, رک جو سلطان, مر چکا ہے وہ. نہیں ولید, مت روکو, اس سے میشو کو مارا ہے. یک دم منظر بدلا تھا. یک دم بازی ہاتھ آئی تھی یا گئی تھی, کوئی سمجھ نہیں پایا. اگلے ہی پل ہر کوئی بوکھلایا جب اگلے ہی پل میڈیا سلطان کے روبرو ہوئی. پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے مسٹر رائد کو سلطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا. سب کچھ افراتفری میں ہوا. کس نے کیا کوئی سمجھ نہیں پایا کہ میڈیا یہاں آئے کیسے. رانیہ نے تو مکمل انتظام کر رکھا تھا. یہاں ایک ایسی بھی پولیس آفیسر رانیہ موجود ہے, کیا وہ بھی شامل ہے؟ بہت لوگوں نے رانیہ کو گھیرے میں لے لیا تھا. سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. سلطان گمسم کھڑا تھا. وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا. اسے ریسٹ کیا جائے گا, کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ خاموشی سے آگے آیا, جھک کے امیشا کے سامنے بیٹھا. اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں لوٹ کے آؤں گا, میرا انتظار کرنا. کہہ کے وہ دوبارہ کھڑا ہوا اور وہ دنیا سے بیگانہ. میں سلطان غازیان آدم سکندر یہ قبول کرتا ہے کہ سامنے پڑی وہ لاش جس کا نام رائد ہے وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوئی. کہہ کے اس نے چپی کا لبادہ اڑا اور خاموشی سے خود کو قانون کے حوالے کیا. آج پہلی بار پولیس صحیح کام میں غلط بندے کو پکڑنے آئی تھی. رانیہ جانتی تھی کہ اس کی وردی چھین لی جائے گی, طرح طرح کے الزام لگائے جائیں گے. سب کچھ ہاتھ تو آیا مگر بہت کچھ کھونا پڑا. ہر خطا کی کوئی نہ کوئی سزا تو ملے گی. امیشا کے بدلے اس سے اپنی معصومیت گئی. اگر امیشا ملی تو یوں لگا عزت کی زندگی کی. وہ خاموشی سے چلتا گیا. لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے. وہ بہت کچھ سن رہا تھا. دور کھڑی گاڑی میں بیٹھی ہیرا مسکرائی تھی. جس نے میڈیا کو بھیجا تھا اس کے ساتھ بیٹھے یاقوت کے لب بھینچے ہوئے تھے. رائد اس کا اکلوتا بیٹا تھا. پریسا کی نظریں سامنے ٹی وی پہ جمی تھی. یہ سب جھوٹ ہے, الزام ہے. آپ دیکھیے ماں, یہ لوگ سلطان کو پھنسا رہے ہیں. یہ لوگ کس قدر گھٹیا ہو گئے. بڑی ماں نے ایک نظر دیکھا, پھر آنکھیں بند کی تو آنسوں کی لڑی نکلی. کہیں نہ کہیں وہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب ہوگا. یہ بات ان کی سمجھ میں بہت پہلے آ چکی تھی. اگر سلطان امیشا کو پائے گا تو کچھ خاص کو کھو دے گا. بارش مسلسل پڑ رہی تھی. اس لاش کے آگے ڈو ناٹ کراس کی لائن لگ چکی تھی. لاش ابھی بھی ویسے ہی پڑی تھی. منظر یکدم تبدیل ہوا تھا. ہواؤں کا رخ بھی بدلا تھا مگر غلط سمت. اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں. وہ پھر سے مجرم بن گیا اور مجرم معصوم. یہاں اصلی وکٹم کون تھا؟ سلطان جس نے برائی کو روکا, یا پھر یاقوت جس کا بیٹا مارا گیا؟ اور اب قانون فیصلہ کرے گا. قانون کو ثبوت چاہیے. میڈیا وہاں گولیاں چلنے کے بعد آئی. اگر گواہی سلطان کے حق میں ہو تو وہ رہا ہو جائے گا, مگر یہ ممکن نہیں تھا. وہ شک میں مبتلا نہیں تھا کیونکہ جو ہوا تھا سرے عام ہوا تھا اور سلطان نے خود قبول بھی کیا تھا. اگر سلطان کو بچانا تھا تو ایک راستہ تھا خود کو وکٹم ثابت کرنے کا. اگر وہ عدالت میں یہ ثابت کرتے کہ سلطان نے یہ گولی اپنے سیلف ڈیفنس میں چلائی تھی, اور یہ ثابت اگر کر دیا گیا تو رائد اور اس کا باپ جو کہ ایک بزنس مین ہے, اس سے اگر ان کی اصلیت ان کے سامنے کھول دی جائے تو اس کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی. مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا. یہ دونوں دشمن اب آمنے سامنے تھے. دیکھنا یہ تھا کہ کس کا کتنا رخسار ہوتا ہے. قانون ثبوت مانگتے ہیں. اسے اس بات سے غرض نہیں کہ وہ کتنے ظالم ہے, کون وکٹم ہے اور کون گلٹی. اگر قانون کے سامنے وکٹم کو گلٹی بنا کے پیش کیا جائے تو وہ مجرم ہی ہوگا. سلطان یہاں پہ کون تھا؟ سروائیور. ہاں, سلطان سب کے لیے ایک مثال تھا. ہاں, سلطان غازیان آدم سکندر وکٹم کے بعد اب ایک سروائیور تھا. قاتل نے قاعدے سے نظر چرا لی. مقتول نے خاموشی میں بات سنا لی.
خون کی مہک سے جاگ اٹھی ساری گلی، سچ نے خود اپنی ہی شہادت اٹھا لی، قاتل تو ایک لمحے میں سب کچھ ہار گیا، مقتول نے مر کے بھی روایت بچا لی، عدالت وقت میں فیصلے تھک کے، مٹی نے دونوں کی حقائق چھپا لی، انصاف ڈھونڈتا رہا بازار وقت میں، مقتول نے اپنی ہی نگاہوں میں ایک کہانی سے چھپا لی۔ ایک ماہ بعد وہ اپنے کمرے میں تنہا تھا، یوں جیسے کئی برس گزر گئے ہوں، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے آ گئے تھے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کچھ کانٹے پیوست ہو چکے تھے، وہ اس دنیا کو بھول جانا چاہتا تھا، اب آزاد ہونا چاہتا تھا، وہ بیڈ کے ساتھ زمین پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک لفافہ پڑا تھا، اس نے لال مترنم نظروں سے وہ لفافہ اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے کھولا، اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکے تھے، اس لفافے میں ایک تحریر درج تھی۔ تم نے ہم سے ہمارا بیٹا چھینا، ہم نے تم سے تمہاری زندگی چھین لی، تمہارا مخلص تمہارا دشمن۔ وہ کئی بار پڑھ چکا تھا مگر زخم آج بھی تازہ تھا، سب وعدے ٹوٹ کے، وہ سب یادیں چھوٹ گئیں، اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ میرے سینے پہ ایک گہرا گھاؤ ہے، میرے سینے پہ ایک گہرا گھاؤ ہے،